Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में जो लिथो का पोर्शन था क्वेश्चन आंसर का पैराग्राफ का वो कंप्लीट किया था एंड अलोंग विद दैट वी रोट कलेक्टिव नाउन्स राइट. मैंने आपको बताया था कि ग्रुप पूरा एक ग्रुप होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. सो हमने लास्ट लेक्चर में वहाँ तक देखा था राइट. Okay, today we are going to do activity number 5. See, what is activity number 5? Write individually and write a work individually and write a paragraph using simple past tense in the above 50 to 100 words about how you had celebrated Uttarayan. After writing it, share your views in the class. ये पैराग्राफ हम अभी नहीं लिखेंगे, ये हम बाद में लिखेंगे. ओके, आई विल टीच यू हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पैराग्राफ लिखते हैं. ओके, सी बी, work in a group and fill in the blanks in the following paragraph with appropriate forms of verb in the past tense. Make necessary change in the paragraph to convert it in narrating past event. Okay, यहाँ आपको सिर्फ ये जो वर्ड्स है ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, इसके आपको पास्ट टेंस लिखना है. ओके, सो सी, festivals indeed not only add का past tense added colors to our routine life, but they also rejuvenated. What is the pronunciation? Rejuvenate. तो क्या आएगा? Rejuvenated. Rejuvenated our lives with new zest, energy and love for life. Festivals are a means of preservation and transmission of our rich culture heritage from generation to generation. And incalculate है तो क्या आएगा? Incalculated. ये past form है. ओके, incalculated values and morals in lives. Festivals are of various kinds such as religious, national, cultural, historical, social tradition, custom and based on some beliefs and legends. Yes. See, festivals are usually take cover from took. Festivals are usually took as a time for enjoyment, but there are some festivals which are celebrate का verb from celebrated to pay tribute and homage to sacrifice of great martyrs or some religious significance. Example, Good Friday, Moram, etc. India to have का past form to has हो जाएगा. To has great diversity being multi-religion and multi-religion nation. Different festivals to be का were होगा. Were celebrated in different regions and part of the country and each has its own importance. Okay, so ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है. एक एक जो वर्ड्स है वो आपको लिखना है. ओके, पास्ट टेंस में, पास्ट फॉर्म में. Then C. Closely study the sample of letters given above in activity 2. Each paragraph or section or letters is assigned number. Work in a group and match the following column A and column B. Okay. See, ये वाला ना on page number, if I say you, then page number 20 to 23 में दिया है. Heading वो कौन से पॉइंट में था देखना, साइड में आपको पॉइंट है लाइक दिस, वो 2.1 और
2 में था तो यहाँ 1 लिखो। फिर द ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन कहाँ था? 2.3 में था। द बॉडी ऑफ मेन टेक्स्ट वो कहाँ था? 4 और 5 में। कंक्लूजन पार्ट कहाँ था? 2.6 और 2.7 लाइन में। द सिग्नेचर लाइन कहाँ था? 2.8 में। पोस्टस्क्रिप्ट PS नॉट गिवन, सो नॉट गिवन में करो। ओके, अंडरस्टूड? आपको पता चला ये कहाँ से मैंने लिखा? आपका जो पेज नंबर 22 एंड 23 है, आप उधर ओपन करना, आपको वहाँ दिया होगा साइड में नंबर, आपके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर दिया होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे। फिर उसमें से हमने ये लिखा। ओके ओके। फिर देखो एक्टिविटी नंबर 6 है कुकिंग। सो सी कुकिंग तो आप बच्चों नहीं करने वाले हो, सो कुकिंग हम नहीं करेंगे। कुकिंग वाला आप पोर्शन है वो कट कर दो के। फिर देखो एक्टिविटी नंबर 7, इट्स अ पोएम। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एंजॉय इट्स सिंप्लिसिटी। ओके। Christmas comes with children singing. Christmas comes with slide bell ringing. Christmas comes with frosty nights. Christmas comes with snowball fights. Christmas comes with Santa Claus. Christmas comes with snowy floors. Christmas comes with robins and reindeers. Christmas comes with hearty cheer. Christmas comes with gold, frankincense and myrrh. Christmas comes with Jesus' birth. Christmas comes with angels from afar. Christmas comes with a wondrous star. Christmas comes now at last. Christmas comes like in the past. Christmas comes after such long wait. Christmas comes at it will be great. Now here, ये जो पोएम है वो क्रिसमस के ऊपर लिखी गई है। और किसने लिखा है? एमी ड्रैनब्रुक ने। किसने लिखा है? एमी ड्रैनब्रुक। सी, आपको पोएट या तो राइटर के नेम भी याद रखने होंगे। इट इज़ नॉट यूजफुल नाउ बट लेटर ऑन इट विल बी यूजफुल। तो आपको ऐसी हैबिट करनी होगी कि जब आप कोई स्टोरी रीड करते हो, कोई पोएम करते हो, तो उसके राइटर है, कौन पोएट है, उसका नेम भी याद रखो। ओके, सो ये पोएम क्रिसमस में दी है, क्रिसमस के लिए दी है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सी, क्रिसमस कम विथ चिल्ड्रन सिंगिंग। यस, हंसते गाते गाते क्रिसमस आता है। फिर क्रिसमस कम विथ स्लाइड बेल रिंगिंग। और रिंग बेल रिंग होता है ना, जिंगल बेल का, तो उससे क्रिसमस आता है। क्रिसमस कम विथ फोस्टी नाइट। फोस्टी मतलब एकदम स्नो आइज वाली नाइट। क्रिसमस कम विथ स्नोबॉल फाइट। यस, यहाँ तो स्नो नहीं होते, बट ये आउटर कंट्री की बात हो रही है जहाँ बर्फ़ गिरते हैं और फिर वहाँ से फाइटिंग होती है। ऐसे ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रन गाते हैं, बेल्स रिंग होते हैं, पूरा जो रात होता है उसमें पूरा एकदम आइज होता है और फिर स्नोबॉल फाइटिंग होती है। क्रिसमस कम्स विथ सांता क्लॉज। यस, क्रिसमस में मेन चीज़ क्या है? सांता क्लॉज। सो क्रिसमस सांता क्लॉज लाता है। क्रिसमस कम विथ स्नोपी फ्लोर। स्नोपी एकदम मतलब वो स्लाइड वाला, एकदम ऐसे स्लाइड वाला, आप बैठोगे तो एकदम सुर करके नीचे उतर जाओगे, ऐसे स्लाइड वाला। क्रिसमस कम विथ रॉबिन्स एंड रेंडर। रॉबिन्स मतलब हॉर्स और रेंडियर्स मतलब रेंडियर्स, आपने एनिमल्स का नाम सुना ना, इसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। क्रिसमस कम विथ हार्टली चीयर। यस, उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ तो नहीं मनाते बट क्रिश्चियंस मनाते हैं क्रिसमस। वो ऐसे ही बहुत उत्साह से, बहुत हार्टली वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस कम विथ गोल्ड फ्लैकिन सेंट एंड मृ। फ्लैकिन सेंट मीन्स बहुत अच्छी खुशबू, स्वीट स्मेल, यू कैन से दैट। और मृ मतलब क्या होता है? गम, रेजिन गम होता है,
गोल्ड फ्रैंक्सिंग और मृग से, मतलब एक जॉयफुलनेस से मनाया जाता है। क्रिसमस कम्स विद जीसस बर्थ, ये क्रिसमस कहाँ से आया? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उस दिन, उनके हैप्पी बर्थडे को हम क्या कहते हैं? क्रिसमस। क्रिसमस कम विद एंजल्स फ्रॉम पावर, क्रिसमस है वो एंजल्स लाते हैं, बहुत दूर दूर से एंजल्स लाते हैं, मतलब फेरीज लाते हैं। क्रिसमस कम विद वंडरियस स्टार्स, ये स्टार्स जो चमकते हैं वंडरियस स्टार्स के साथ क्रिसमस आता है। देन क्रिसमस कम्स नाउ एट लास्ट, फिर क्रिसमस एट लास्ट आता है। यस सी, क्रिसमस ईयर के एंडिंग में आता है, दिसंबर में आफ्टर क्रिसमस से हैप्पी न्यू ईयर आता है, राइट? सो एट नाउ एट लास्ट, एकदम लास्ट में आता है। क्रिसमस कम्स लाइक इन द पास्ट, ऐसा लगता है जैसे तो अभी गया है क्रिसमस। क्रिसमस कम्स आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट, यस बहुत लॉन्ग वेट के टाइम बाद आता है, इस दिसंबर में आया, फिर एक साल बाद दिसंबर में आएगा। क्रिसमस कम्स इट विल बी ग्रेट, वो बहुत ग्रेट होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। सो हु इज द राइटर? एमी ड्रैनब्रुक। ओके, नाउ से कीवर्ड्स रीड करते हैं। नाइट मीन्स क्या होता है? अ लाइट व्हीकल हॉर्स ड्रॉन यूज एक्सपेशली ओवर स्नो और आइस। ओके, मतलब लाइट व्हीकल, एकदम हल्का व्हीकल जो हॉर्स चलाते हैं और वो मोस्टली आइस में भी मिलती है। फ्रॉस्टी मीन्स कवर विथ फ्रॉस्ट और आइस, मैंने बोला ना बर्फ से पूरा कवर होता है। देन फ्रैंकिनसाइंस, मैंने बोला ना हैज अ स्वीट वार्म बाल्सेमिक अरोमा, मतलब स्वीट अरोमा, स्वीट स्मेल, अरोमा मतलब स्मेल। म्री मतलब एन aromatic gum resin, one type of gum. ओके, वंडरियस मतलब वंडरफुल और मार्वेलियस, बहुत सुंदर। ओके, ये आपको ना नोटबुक में लिखना है, कीवर्ड्स नोटबुक में नोट डाउन करना है कीवर्ड्स। सी क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर 8। In the poem, there are certain words with rhyme with other. Find out the rhyming words from the poem. Okay, यहाँ आपको rhyming words लिखने हैं poem के according, तो चलो हम लिखते हैं। Last, past, ringing, ringing, singing, singing, nights, nights, fights, fights, reindeer, reindeer, chwr, cheer, afr, star, star, afar, star, last, last, pst, past, wait, wait, gret, great. So आपको भी ऐसे ही लिखना है। ओके, देन कम्स एक्टिविटी 9, वो ग्रुप एक्टिविटी है, सो वो पॉसिबल नहीं है, सो वी विल नॉट डू दैट एक्टिविटी। ओके, नाउ मूव टू योर लिथो पोर्शन। अभी लिथो पोर्शन में आप जाओ। सो लिथो पोर्शन में लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ्स कंप्लीट किए थे, राइट? ओके, सो आज हम एक ग्रामर का टॉपिक करेंगे, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। नाउ व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब इतना याद रखो, सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है। अब होगा कि नहीं पता नहीं, बट वो ऑलरेडी जो चीज़ है वो हो चुकी है। सो सी, I celebrated. See, celebrate, clean, shoot, stop. Okay, you clean, shoot, we shot. SHOOT, देखो shoot का क्या होगा? SHOT, shot. We shot. They stopped. STOPPD, stop. फिर देखो सेम वे, ही शी इट में भी सेम रहता है। सो इसमें आपको क्या याद रखना है पता है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट जो भी आए
उसमें आपको सिर्फ पास्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर सेलिब्रेट है तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड। क्लीन है तो क्या होगा, क्लीन्ड। शूट, शॉट। स्टॉप, स्टॉप्ड। ओके, सी आप नीचे देखो, ये फिक्स है। ओके, इसमें डी या ईडी लगेगा। पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब इज फॉर्म बाय एडिंग ईडी और डी। ये ईडी और डी से ही फॉर्म होते हैं। ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है बच्चों। ओके, सो कॉल, कॉल्ड। मिक्स, मिक्स्ड। वाइप, वाइप्ड। डेकोरेट, डेकोरेटेड। वेव, वेव्ड। सो ये तो सेम ही रहेगा एवरीवेयर। लाइक सी, I called, I mixed, I whipped, I decorated, I waved. फिर you called, you mixed, you whipped, you decorated, you waved. We called, we mixed, we wiped, we decorated, we waved. He called, he mixed, he wiped, he decorated, he waved. ओके, सो इसमें चेंज नहीं होता। आप जो कि देखो पास्ट टेंस में देखना आप कि थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है कि ही शी इच में को एस नहीं आता और आई यू वी, यस आई यू वी धे में ना एस लगता है एट द एंड ऑफ द वर्ड, एस और ई एस लगता है। बट ही शी इट में एस और ई एस नहीं लगता। बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि एस ई एस, ऐसा कुछ रूल्स ही नहीं है। इसमें क्या है, जस्ट आपको पास्ट फॉर्म में लिखना है। वो किससे जनरली फॉर्म होते हैं, डी और ईडी से। ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका जो है लास्ट वर्ड और डबल आपको लिखना पड़ता है। वो आपको कैसे पता चलता है, आई विल शो यू। सी, जब भी आप वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट को देखो, वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट मतलब बी सी डी एफ जी वो सब। तो आप भी जब भी आप कोई वर्ड देखते हो उसमें आप पहले देखते हो वोवेल और फिर एट लास्ट कॉन्सोनेंट है। देखो ऐसे, जो ये वर्ड है एस एल एम, तो उसमें ए है वो क्या है, वोवेल, और एम क्या है, वो कॉन्सोनेंट। तो जब भी आप वोवेल और कॉन्सोनेंट देखते हो तब आप क्या करते हो, जो कॉन्सोनेंट होता है उसे डबल टाइम रिपीट करते हो और फिर ई डी लिखते हो। जैसे किसी एस एल एम ई डी स्लैम्ड, एस के आई डबल पी डी स्किप्ड, डी आर ओ डबल पी टी ड्रॉप्ड, सी एल ए डबल पी डी क्लैप्ड, W O R S H I double P D worship. So whenever you see that in the word, जब vowel plus consonant है, पहले vowel दिया है फिर consonant दिया है, तो आपको जो consonant है वो डबल टाइम रिपीट करना है। सी इधर ए एम आई पी ओ पी ए पी आई पी, ये क्या है, ये वोवेल्स है और ये कॉन्सोनेंट है। सो व्हेनेवर देयर इज वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तभी हमेशा जो वोवेल होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो डबल टाइम रिपीट होता है और एट लास्ट क्या आता है, ई डी। ओके, डबल पी डी डबल एम ई डी, लाइक दिस। सी, नाउ हमें कुछ इरेग्युलर फॉर्म दी है वर्ब के पास्ट टेंस के, ये भी आपको याद रखना है। सी, एस आई एन के सिंक, एस आई एन के सेंक, सिंक सेंक, एफ ए डबल एल फॉल, एफ ई डबल एल फेल, फॉल फेल, बी ई जी आई एन बिगिन, बी ई जी एन बिगैन, सी ए डबल आर वाई कैरी, सी ए डबल आर आई डी कैरीड। सी, व्हेनेवर यू सी वाई ना, तभी वाई को आप निकाल दो और उसके जगह आई ई डी लिख दो। ओके, सी ए डबल आर वाई, तो आई को डिडक्ट कर दो, आई को निकाल दो और उसके जगह आई ई डी रख दो। डब्ल्यू ए डबल आर वाई, वरी, वाई को निकाल दो, आई ई डी लगा दो। टी आर वाई, वाई को निकाल दो, आई ई डी लगा दो। ड्राई, वाई को रिमूव करो, आई ई डी लगा दो। रिप्लाई, वाई को रिमूव करो, आई ई डी लगा दो। ओके, ग्रो, ग्रू, नो, न्यू, wear, wore, tear, tore, freeze, froze, tell, told, shake, shook। ओके, सो ये जो इरेग्युलर वर्ब फॉर्म है ये भी आपको
लर्न करना है। क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस। नाउ इसमें आपको क्या करना है, जो भी वर्ड्स आपको पास्ट टेंस में दिखे उसका आपको, सॉरी, जो भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस में दिखे उसका आपको पास्ट टेंस करना है। ओके, सो सी, मिताली wears the dress which she buy for her sister। wears और buy, ये दोनों के पास्ट फॉर्म क्या होगा? wears का क्या होगा? wore, buy का bought। तो सी, मिताली bought the dress which she, sorry, मिताली wore the dress which she bought for her sister। ओके, सिंपल है ना, ये तो आपको आ ही जाएगा। Then see number 2. Arjun shoots an arrow and it hits the bird। Shoots, hits। Okay, इसका अभी आपको past tense करना है। Arjun shot an arrow and it hitted the bird। Hit का past form क्या होगा? Hitted। Because क्या है? HITT क्यों लिखा? Vowel plus consonant is, so consonant will be repeated। Okay, फिर number 3, Rama washes the clothes and dries them in the sun। washes and dries, washes का क्या हो जाएगा past form? washed, और dries का dried। Rama washed the clothes and dried them in the sun। So you have to remember this। Then number 4, the teachers speak to students who throw papers on floor। Speak, throws। The teacher speak का क्या हो जाएगा? Spoke। The teacher spoke to the student who, throw का past form threw, THREW, threw paper on the floor। We buy books and go home। go, sorry, buy और go, क्या होगा उसका past tense? We bought books and went home। See, बट जो past form किसका होता है पता है? verb का। जो doing words होते हैं ना उसका ही past form होता है। So you have to remember this कि the doing words are only converted into past tense। आप ऐसा सोचोगे मैडम को कैसे पता चला speak ही past होगा, throw ही past होगा, floor का क्यों past नहीं होगा? जो भी आप doing words होते हैं ना verb, उसका ही past form होता है। ओके, people worship God and ask for blessing। worship and ask, people worshipped। why we put worship? because I और P है, I और P क्या है? vowel plus consonant। so हमने जो consonant है उसको डबल टाइम रिपीट किया। people worshipped and ask for blessing। ask का क्या हो जाएगा? asked। people worship and asked for blessing। then Rohit Bhai slams the door and hurries out of the office। slams और hurries, रोहित भाई slammed, slam का क्या हो जाएगा? slammed the door and hurried out of the office। hurried मतलब जल्दी जल्दी, slammed the door मतलब ऐसे जोर से खोला और बंद करके चले गए। slammed उसमें डबल एम क्यों यूज किया? वोवल प्लस कॉन्सोनेंट है उसीलिए। ओके, देन मोहित टीयर द पेपर एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। सो इसमें देखो टू वर्ड्स आएंगे, एक टीयर एक थ्रो। थ्रो का क्या हो जाएगा? थ्रू। टीयर का टोर। मोहन tore the paper and threw in the dustbin। 9. The children sing songs and enjoy themselves। sing or enjoy, the children sang songs and enjoyed themselves। We worry for Sohan because he drives carelessly। We worried for Sohan because he drives carelessly। The gardener plants trees and waters them।
plants water. The gardener planted trees and watered them. ये आपको याद रखने हैं इसके सबके past tense. Okay. The trees shake in the wind and the leaves fall down. The trees shook in the wind and the leaves fell down. Okay. 13. Rohan falls down from the tree and cries. Rohan fell down from the trees and cried. Mrunal ran fast and stopped the bus. Mrunal ran fast and stopped the bus. In Abu, the water freezes in winter and makes life difficult. In Abu, water froze in winter and made life difficult. So it is very simple. What you need to do is you have to remember all the verb form, all the past tense of verb. आपको verb के सभी past tense याद होने चाहिए. Like fell का fall का fell, then sing ka sang, throw ka threw, like this cry, cried, stop, stopped. Okay. So आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखते हो ना उसमें आप पहले वर्ब में टिक कर लो, फिर जस्ट वो वर्ब के ही आपको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके. सो इट्स वेरी सिंपल. नाउ आई थिंक आपको इसमें कोई भी टाइप का डाउट नहीं होगा. करेक्ट. ओके. सो सी कलेक्टिव नाउन. मैंने आपको ये कलेक्टिव नाउन है वो ऑलरेडी करवा दिया है. राइट. हमने नोटबुक में लिख लिया है. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ गैंग ऑफ थीव्स, आर्मी ऑफ सोल्जर, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ कोरस ऑफ सिंगर, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर. राइट. ये सब मैंने आपको लिखाया है नोटबुक में. फिर एनिमल्स के लिए हमने कुछ लिखा था, सभी हमने ऑलरेडी कर लिया है. सो नाउ आपको क्या करना है, आपको जो इसमें है ये क्वेश्चन नंबर 4 फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन, वो आपको आपकी लिथो में नोट डाउन करना है. ओके. नाउ आपको कलेक्टिव नाउन मतलब तो पता चल गया कि एक ग्रुप के लिए हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. सो नाउ यू हैव टू राइट इट इन योर लिथो. ओके. सो आज का आपका होमवर्क क्या है, लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन द टेक्स्ट बुक यू विल कंप्लीट yes question number B and question number C. After completion of that you will write the keywords in your notebook, and after writing in the notebook you will come to litho portion and there you will complete all the sentences using simple past tense. Okay. After completion of that you will complete all the collective nouns. Okay. So got it. Okay. So now have a good day and bye bye.